So today we will be talking about the Indian passives landscape. But before moving on to the topic, I would like to congratulate you all that mutual fund industry has now become the 30%, is now 30% of the bank FDs. So a big pat on your back and big round of applause for all of you. Yeah. So as Prem rightly pointed out in the morning that passives is now 17% of the business. One reason could be the underperformance of actively managed fund. So our analysis shows that 3 out of 10 actively managed fund have able to generate the benchmark. And in some popular categories like small cap fund, only 1 out of 10 funds have outperformed in 5 years, right? So as a result, the AUM of passives have been growing by leaps and bounds. So today we have a power pack panel. I have from index provider Ashutosh, I have manufacturer Deepak, I have Harsh who will represent the advisory and distribution aspect, and I have keen observer Krishnan. So I'll start this panel with Ashutosh. Ashutosh, so passive funds have been growing by leaps and bounds. So what are the 3 possible reasons behind this? Before I get to the 3 reasons, maybe I'll take a moment to just chart out the trajectory of passives in India. So I think passives in India has been around for the last 25 years. First 15 years, obviously, there was a lot of struggle in terms of seeing any meaningful traction in the growth of passives. So in 2015, around 2015 sometime, the AUM in passives was just shy of the 10,000 crore number, which, today as we sit here on this panel, is clearly north of 11.5 lakh crores. So that's a growth of more than 100x in the last 10 years. And obviously, when you think of this growth, there have to be some leapfrog moments, right? So just to juxtapose the leapfrog moments we've had in India, I would try to draw a parallel with the US. So for example, in the US, if I could think of those 2 very big inflection points, one was in 1981 when President Ronald Reagan announced the 401k and the advantages of passives with the 401k movement. And then next was GFC, when there was a growing realization that, like you rightly pointed out, actives were not really able to generate alpha. In India, if I were to think of those 2 or 3 very, very seminal, very, very important moments, I think the first one, without doubt, has to be August 2015. That's when EPFO started to put part of their allocations towards ETFs, especially in Nifty and Sensex. So that really was the kind of push that got passives underway in a meaningful way in India. A few years later, we had, Government of India doing some divestment programs using the ETF wrappers. So, for example, you have the Bharat 22, you have the CPSC, and so on and so forth. So that was another very important moment, which gave a nice fillip to the growth of passives in India. And then obviously there was some regulatory boosts also that came along. So for example, the categorization circular, because clearly the regulator felt for the right reasons that there was a proliferation of schemes on the active side. So to put a curb on that, the categorization circular also was a very important moment. So I think these 3 moments, to my mind, were extremely, extremely seminal and important from giving a fillip to the passive story. So that's your EPFO flows, your divestment programs to the ETF wrapper, and some regulatory boosts also coming along the way. So yeah, I mean, these 2 points, Ashutosh. So Deepak, so many MFDs do not sell passives because they do not make any business sense for them. और वो कहीं ना कहीं सही भी है. अगर आप एक एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड बेचते हैं तो कुछ 80 पैसे के आसपास कमीशन ऑन एन एवरेज मिलता है. वहीं अगर पैसिव फंड इंडेक्स बेचेगा तो उसको 50 मिलेगा. और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी इंसान को ये अच्छा नहीं लगा कि इनकम कम हो जाए. तो व्हाई डू यू थिंक कि उनको इसके बाद भी पैसिव फंड सेल करना चाहिए? व्हाट इज़ योर व्यू? सो मुश्किल सवाल है. सो आई थिंक जो पिछली पैनल भी थी, काफ़ी देर बात हुई कि एज AMCs ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि देर इज़ अ नेचुरल प्रेशर ऑन द मार्जिन्स, बट आई थिंक देर इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑन आवर साइड. ये समझ आ रहा है हम लोगों की ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फॉर क्रिएटिंग मीनिंगफुल पोर्टफोलियोज, फॉर क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन, एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है.
ये ट्रेंड यूएस में ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है. सो अभी एक ऐसा हुक है वेयर इज नो एस्केपिंग इट टू अ डिग्री. Whether it is compressing a little bit on our end and compressing a little bit on your end, that pain is to a degree mutual, but it is the right thing today. जब हम पैसिव फंड्स की बात करते हैं, सो ETFs में द फीस आर इवन लोअर, बट इंडेक्स फंड्स में फिर भी देर इज अप टू 1% ऑफ फी. आई थिंक सवाल भी पूछा गया था, आई थिंक मैम हैड आस्क्ड सम टाइम बैक. सो जितना भी उसका हिस्सा हम मीनिंगफुली सेव अप कर पाते हैं, एंड नेचुरली मैनेजिंग पैसिव फंड्स इज चीपर फॉर अस ऑल्सो. So we are able to share that and kind of help you grow that margin a little bit. But more importantly, from our perspective, from the industry's perspective, this is a growth business. कि जो पैसा आप यहाँ ला सकते हैं, वो पैसा आज एक्टिव में लाना इंक्रीमेंटली मुश्किल है. अभी हमने 2 मिनट पहले बोला कि हम लोग 30% ऑफ 30% ऑफ FD वॉल्यूम हो गए हैं. आई थिंक सुबह की एक पैनल में किसी ने, आई थिंक अरुण ने कहा था कि target maturity funds are parity to FDs, typically beat FDs from anywhere between 30-40 basis points all the way to 1.5, 1.8% even, depending on आप क्या duration, क्या setup का target maturity fund ले रहे हैं. So if you think of the additional returns of 50, 60, 70, 80 basis points as an average, it is a meaningful opportunity set for this industry to try and target clients who are not in the industry today. If we are 70% of, let's say, the FD space, and we have a product which is better than the FD space in terms of returns, can offer fairly similar risk profiles of AAA rated securities, then why not take it to the investors and grow the baseline? तो 2 तरीके हैं देखने के कि मैं पाई शेयर कर रहा हूँ अपने रेवेन्यू की, या मैं ओवरऑल पाई बढ़ा रहा हूँ इससे कस्टमर्स लेके नए जो वैसे मेरे पास फंड्स में नहीं आते. तो व्हेन यू पुट दोज 2 पर्सपेक्टिव्स टुगेदर, जब आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपको उस सवाल का जवाब मीनिंगफुली खुद नजर आएगा. ग्रेट पॉइंट दीपक. हर्ष, कमिंग टू यू. सो आप तो फाइनेंशियल फी ओनली एडवाइजर है, तो आपको फ़र्क, आप वैसे भी डायरेक्ट प्लान रिकमेंड करते हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडेक्स हो या ETF हो. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कमीशन मॉडल में काम करते हैं, उनके रेवेन्यू पे सीधा इम्पैक्ट करता है. तो व्हाई डू यू थिंक दैट दे शुड रिकमेंड पैसिव फंड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. 2 तरीके से मैं इसका जवाब दूंगा. तो एक पहली बात यह है कि मैं हमेशा से आ रहा ये नहीं था, और लोगों की तरह मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था. एंड इनफैक्ट ये जो जर्नी है इनटू पैसिव फंड्स, दैट बेसिकली कोइंसाइडेड टू आवर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर. हम हमेशा से फिनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, गोल बेस्ड हमेशा से ही करते थे. जब डिस्ट्रीब्यूटर थे तब भी करते थे, और तब अलाउड था, इसलिए उसके लिए फीस लेते थे. और जो असेट्स होते थे, अगर म्यूचुअल फंड में होते थे तो उसका जो भी है उसका कमीशन हमें मिलता. प्रायर टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मेकिंग इट कंपलसरी कि आप कमीशन नहीं ले सकते, उसी के पहले ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे फी ओनली में. और फिर जब कोविड आया, ओके, तो कोविड आया तो बहुत रैपिड जो ड्रॉप हुआ इक्विटी प्राइसेस से, तो उसकी वजह से असेट रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया. और उस समय रीबैलेंसिंग के समय जो पैसिव था वो एक नेचुरल स्पेस था कि भाई निफ्टी 50 दे दिया, उस तो निफ्टी 50 आपने दे दिया तो वो एक आपने इक्विटी में ले लिया, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ असेट मैनेजर. सो आई थिंक दैट वाज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. और उस समय तक हमने सॉर्ट ऑफ फीस शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा. अब धीरे धीरे जाके आगे जब उसको और हमने रिसर्च किया तो अब समझ में आ रहा है कि बाद में जैसे फैक्टर फंड्स आए, तो देन वो फैक्टर फंड स्टार्टेड रिप्लेसिंग द एक्टिव फंड्स. जो पहले स्पेस हुआ करता था कि मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए एक्टिव फंड्स चूज़ करते थे, उसके बदले में ये फैक्टर फंड्स आने लग गए. ओके, तो ये अगेन जो डेटा है वो इतना कंपेलिंग है कि आप कोई भी तरीके से आप रोलिंग रिटर्न्स करके देख लीजिए, 5 इयर्स करके देख लीजिए, 7 इयर्स, 3 इयर्स, 1 ईयर, आप डाउनसाइड डिविएशन करिए, आप एवरेज रिटर्न्स देखिए. इट इज़ सो कंपेलिंग कि इट इज़ बहुत डिफिकल्ट होगा एक्टिव फंड्स को उसको बीट करना. तो अब मेरी ज़रूरत है कि नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर होता
तो मेरी ज़रूरत है कि नहीं, तो क्लाइंट की वो ज़रूरत है, उसको मैं अगर नहीं दूंगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म वो क्लाइंट अगर मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरी फीस ज़ीरो हो जाएगी। तो जो क्लाइंट के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। ओके, आई थिंक दैट इज़ वन। अब इतना हो रखा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो फैक्टर फंड्स हैं, कैन दे इवन रिप्लेस द बेसिक, नॉट एक्टिव तो हमने काफ़ी हद तक कर लिया, लेकिन इवन जो कोर है, जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस है, जो जो वो हिस्सा है क्लाइंट्स का जिस पे हम वो बीट नहीं करना चाहता मार्केट को, मार्केट रिटर्न्स ही चाहता है, वहाँ भी उसको रिप्लेस करें। क्योंकि अगर आप डेटा अगर देखें तो डाउन साइड मतलब सारी चीज़ आप करके देख लीजिए, वो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस से बेटर रिटर्न्स आपको दे रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे दे रहा है, और इट इज़ बीटिंग ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस 7, इवन शॉर्ट टर्म में इट इज़ बीटिंग ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस 75-80% ऑफ द टाइम। थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए, उसको 5 साल कर दीजिए, 95, 97, 100, सम ऑफ द फैक्टर्स आर बीटिंग इट 100% ऑफ द टाइम। तो मुझे पता नहीं, चाहे कमीशन नहीं मिले, कम मिले, लेकिन जो क्लाइंट के उसके पोर्टफोलियो के लिए नीडेड है वो अगर आप नहीं देंगे तो आप सरवाइव कैसे करें। एंड बेस्ट तरीका ये है, फी बेस्ड बन जाइए तो आपको ये कमीशन का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। वी चार्ज द सेम फीस वेदर इट इज पैसिव और वेदर इट इज एक्टिव, एंड दैट हेल्प्स अस कन्विंस क्लाइंट्स ओके कि वी हैव दी योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। सो ये थोड़ा सा मार्केटिंग मेरी प्रोफेशन का भी मैं कर रहा हूँ। Great thought, Harsh. Krishnan, coming to you. So you represent FPSB India, and FPSB has presence across 28 countries, if I'm not wrong, right? So what are some global trends that is happening, and what India can learn from it? Thank you, Nishant, and very, very important question. Good afternoon, everyone. Premji, hello. So this is, if you look at most of the parts of the world, especially US, active has been completely beaten there, right? US is 51% passive, right? And in fact, last year, we saw that there was a huge amount of money which was taken out from active and it was pushed towards the passive. So it's very clear that people have started understanding the importance of passive there. The same is happening in Europe, as well as if you look at China, entire Asia Pacific, India is 17%, right? So we see that trend growing everywhere. And in fact, what is really very important is that, as Harshji was mentioning, it's like अगर आप life insurance में term नहीं बेचेंगे client को और सिर्फ endowment बेचेंगे, तो client का फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा हो रहा है. तो look at the client's benefit also, and passive has that benefit. Passive is like your term, right? And wherein you don't make much money, but you are able to do good for the client. The other thing which the world has started understanding is that it's about putting your investment, especially on passive, on the airplane mode and forgetting it, right? So you have to forget it for some good number of years. Then only you'll be able to get the right fruits from it. So that's something which is part of our curriculum also, and we are ensuring that we have started talking about it. We are educating people on this particular area, which is the need of the hour, as well as the future for our country and the entire globe. In fact, India is now positioning itself as the hub for Asia for financial planning and financial advisory. So we will be the ones who will be reckoned with across the world. In fact, I was in Brazil, and the problems that we have, I was recently there, and the problems that we have, including the finfluencers, the same problem is there in that country too. Okay. It's there in US also, it's there everywhere. So the point is that, yes, we have to grow and look at one step above, client interest first, and automatically things will fall in place. Great thought, Krishnan. So coming to Ashutosh. तो आशुतोष, एक नॉलेज वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इंडेक्स आखिर क्रिएट कैसे होता है, इसमें क्या आर्ट होता है, क्या साइंस होता है, और क्यों इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ही है जो पूरा पैसिव फंड क्रिएट करता है. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें. तो इसको मैं दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. एक तो हाउ डू वी क्रिएट इंडाइसेस फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट, एंड देन हाउ डू वी क्रिएट इंडाइसेस फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट. तो जब हम इंडेक्स बनाते हैं दो तरीके होते हैं. वन इज़ ऑब्वियसली वी हैव एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, म्यूचुअल फंड्स बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर, एंड वॉइस ऑफ द कस्टमर इज़ वेरी इंटीग्रल टू व्हाटएवर वी डू विद इन द BSE इकोसिस्टम. तो उनसे काफ़ी फीडबैक आता है. जो फीडबैक आता है, देन वी ट्राई टू फ्लैश आउट
and then create the index, and then it's a co-creation process with AMCs, with insurance companies, and then hopefully they go ahead and launch a product on those indices. Second is obviously we do our own bit of internal research. So for example, one index which was born out of the internal research that we carried out was the BSE Sensex Next 30. So वहाँ पे हम खुद ही white spaces identify करने की कोशिश करते हैं, और उसको identify करने के बाद जो भी gaps हमको लगते हैं, whether broad market में हो या sectoral में हो या factors में हो, उसको plug करने की कोशिश करते हैं. अभी हमने 5 factor indexes भी launch किए हैं. तो वो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है, वो फिर हम प्रोडक्ट बना के लेके जाते हैं मार्केट के पास. तो ये 2 तरीके हो गए, वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड डूइंग आवर इंटरनल रिसर्च. सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट और हाउ वी मेक इंडाइसेस फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट. टेक्निकल स्टैंड पॉइंट एट अ वेरी हाई लेवल मैं आपको समझा देता हूँ. सेंसेक्स का एग्जाम्पल लेके, सेंसेक्स में कल ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है जहाँ पे नेस्ले बाहर गया एंड कौन सा बाहर गया, इंडसेंड बैंक, सॉरी, नेस्ले और इंडसेंड बैंक बाहर गया, BL अंदर आया, ट्रेंट अंदर आया. तो ये टिपिकली कैसे होता है कि हर इंडेक्स का एक पेरेंट यूनिवर्स होता है. तो सेंसेक्स के केस में BSE 100 उसका पेरेंट यूनिवर्स है. हर 6 महीने पे उस इंडेक्स की एग्ज़ाम ली जाती है. तो उसमें क्या करते हैं हम, हर 6 महीने पे जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम रैंक करते हैं उनके टोटल मार्केट कैप के हिसाब से, उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से. तो ये रैंकिंग कर दी हमने. तो पेरेंट यूनिवर्स उसकी रैंकिंग कर दी स्टॉक्स की. फिर उसमें लिक्विडिटी स्क्रीनर्स डालते हैं ताकि उसको रेप्लिकेट करना इजी हो और उस इंडेक्स की एक सैंक्टिटी रहे. तो उसके अंदर इम्पैक्ट कॉस्ट एक स्क्रीनर हो गया, आपका डेली टर्नओवर का एक फ़िल्टर होता है. तो वो सब होने के बाद जो आपकी टॉप 30 स्टॉक्स होती हैं वो इंडेक्स में आती हैं. बट इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इंडेक्स में एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें एक बफर जोन भी हम लोग अप्लाई करते हैं. तो सेंसेक्स में अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो 39th रैंक के बाहर जब तक जाता नहीं है उसको इंडेक्स में रखेंगे हम. जब वो 39th के बाहर निकल गया देन फिर प्योरली मेरिट के बेसिस पे, जैसे इस केस में हुआ है, ये दोनों स्टॉक बाहर चले गए और जो आने वाले 2 स्टॉक थे ट्रेंट और BEL वो आपके उस रैंकिंग में ऊपर आ गए, इसलिए वो अंदर आ गए. सो दैट इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट. एंड देन ऑब्वियसली फैक्टर इंडाइसेस में आप कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखते हो. सो व्हाई शुड यू ट्रस्ट द इंडाइसेस? आई थिंक इसमें ट्रस्ट ना करने जैसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी जो पब्लिक डोमेन में है. उसको ऑन अ विम कोई चेंज नहीं कर सकता. उसको चेंज करने के लिए बाकायदा आपको बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन प्रोसेस कैरी आउट करना होता है स्टेक होल्डर्स के साथ में. तो उसमें कहीं भी जजमेंट वाली कोई बात आती नहीं है. इट्स अ वेरी रूल बेस्ड, it's codified into a set of neatly defined rules, and then as an index provider my job is just to be wedded to the rules that I have put out in the public domain. Okay, so thank you. दीपक, so हालांकि एक्टिव फंड जो है वो शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बोलता है मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बीट करता हूँ. जैसे कि निफ्टी अगर 13% दे रहा है तो प्रसाद देशपांडे बोलता है कि मेरे इन्वेस्टर्स तो 18% बना रहे, राइट? तो ये, लेकिन ये हो रहा है आज, है ना, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? कब तक डिस्ट्रीब्यूटर अल्फा क्रिएट कर पाएगा एक्टिवली मैनेज फंड से? आपको क्या लगता है? सो एक तो लेट सवाल है कि भाई आप जब ओवरऑल बीट कर पा रहे हैं 13%, 14%, 15%, तो आप भी एट द बैक ऑफ योर माइंड एक रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं. वो रेफरेंस या सेंसेक्स होगा या निफ्टी होगा. आज के दिन ये इतना प्रेवलेंट है दैट वी हैव अ बेसलाइन कि ये बेसलाइन के अगेंस्ट मैं अपने आप को देख रहा हूँ. तो जो आप एक्टिव फंड्स उसमें उठा रहे हैं उसमें आई थिंक इन्होंने कुछ टाइम पहले एक मतलब टर्म यूज़ करी थी, downside deviation, risk adjusted return. So as you go deeper into financial planning, it is essential कि आप लोग भी देखें कि जो आप एक्टिव फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या रिस्क पैरामीटर्स ले रहे हैं, क्या ड्रॉडाउन रिस्क ले रहे हैं, क्या बीटा ले रहे हैं, क्या वॉलिटिलिटी ले रहे हैं कि आप वो रिटर्न आज के दिन एडजस्ट कर पा रहे हैं. अगर आपको वही सब मान लीजिए डब्बे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के पैसिव से भी मिल रहे हैं एंड सस्ती कॉस्ट में मिल रहे हैं एंड बेटर परफॉर्मिंग मिल रहे हैं, देन भाई
aggregating some of those blocks better, you can form a stronger core जिसके चारों तरफ फिर आप added value create कर सकते हैं. आज के दिन in a lot of cases there is a portfolio which is getting created as a function of distribution push naturally of the active side which exists. But if you start looking at fundamental portfolios to see कि मेरे investor के लिए जो भी आज के दिन उनके पास पड़ा हुआ है ये, इसको अगर मैं एक तरीके से end to end देखूं कि how much of it is replaceable with a lower risk alternative with similar returns, then there are a lot of options जो आपको भी दिखेंगे कि चलिए यहाँ पे हम लोग STP करके ओवर टाइम एक बेटर पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहाँ पे हम अल्फा जनरेशन चेज करेंगे, बट दैट अल्फा जनरेशन कैन बी वाया एक्टिव, कैन बी वाया पैसिव, बट द कोर ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर. Okay, core should be in the passives going forward. कोर ओवर टाइम आई थिंक इन द नेक्स्ट डेकेड आप लोग खुद रियलाइज करेंगे कि कोर पैसिव्स की तरफ फ्लिप होना शुरू होगा. सो दिस इज द अभी कह लीजिए कलेक्टिव विजडम कह लीजिए ऑफ अस, ऑफ द नंबर्स, ऑफ द वे द मार्केट प्लेज आउट, ऑफ पैसिव itself, that to a degree it is a self-fulfilling prophecy that the core will organically start to shift and it will shift towards passives. सो आप फंड मैनेजर भी रह चुके हैं इन द पास्ट, सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे एक्टिव फंड है तो कई बार मैं कैश होल्डिंग कर पाता हूँ, लेकिन पैसिव में इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको मिमिक करना होता है तो आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या परफॉर्मेंस पे? हाँ जी बिल्कुल. अभी जब मैं लास्ट व्हेन आई वाज इन द यूएस इन द एक्टिव मैनेजमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो देयर वाज अ बिग चैलेंज. यूएस में क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले एनवीडिया करके एक स्टॉक है, आप लोगों ने सबने उसका नाम सुना होगा, एआई के साथ सिनोनिमस है, बहुत भागा. उसका पी का जो मल्टीपल जो हम लोग सब समझते हैं, इट रीच्ड वैल्यूज दैट वर अनहर्ड ऑफ. So active managers across the board probably sold Nvidia 30, 40, 50% below its highs. And they converted that into cash thinking the market is very toppy. जब आप पैंडमिक का भी एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ द चैलेंजेस दैट द एक्टिव इंडस्ट्री फेस्ड इज दैट जब पैंडमिक का मान लीजिए मार्च अप्रैल का पीरियड था, अ लॉट ऑफ एक्टिव मैनेजर्स स्विच्ड आउट ऑफ इक्विटीज एंड इंक्रीज द कैश होल्डिंग्स थिंकिंग दैट द डाउनसाइड रिस्क इज प्रोबेबली हायर. बट वी आर लिविंग इन मार्केट्स जो आज के दिन रिबाउंड बहुत जल्दी कर जाते हैं. एक रबर बैंड इफेक्ट है ऑलमोस्ट कि आप जितना टाइम डाउन रहना चाहिए उतने टाइम रहते नहीं है, बिकॉज अपस्विंग इज क्विकर, बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि कुछ नहीं होगा तो चलो गवर्नमेंट रेट कट करेगी, ग्लोबली कुछ ट्रेड डील साइन होगी, कुछ ना कुछ होके मार्केट्स में एक पॉजिटिव इम्पीटस आना है. एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव स्टोरी, एंड ऑफन दिस बायस ऑफ होल्डिंग कैश फॉर लॉन्गर हैज डेटर्ड एंड काइंड ऑफ put behind the active managers in the longest schemes. Yes, कुछ ऐसी एक स्कीम होंगी जहाँ active cash management would have given more alpha, but 8 out of 10, 7 out of 10, 9 out of 10 schemes by increasing cash allocations have struggled today. So the rebound nature of markets extends beyond the pure maths of even most active managers today, and that is a folly that naturally passive avoids by systematically saying ये हम लोग नहीं करेंगे. Harsh, coming back to you. So you mentioned about the smart beta category. So today we have 6 smart beta factors, and fund houses can launch single factor as well as multi-factor. Now, as a result, the number of funds have increased, the complexity has increased. So don't you think this is against the principle of passives, which is keeping life simple? What is your view? तो हमें सोचना ये है कि हमारा काम क्या है एज एन एडवाइज़र. बहुत हमने सुना अल्फ़ा होना चाहिए, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए. हमने कभी हमारा ये काम है, ये कभी हमने सोचा ही नहीं. हमारा काम है जो क्लाइंट का उद्देश्य है, जो उसके गोल्स हैं, वो कैसे मीट कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का हमारा काम है. और उस जर्नी में वो कंफर्टेबल होना चाहिए. यू मस्ट एन्जॉय द जर्नी जस्ट एज मच एज reaching the destination is important. Enjoying the journey is extremely important. And यहाँ पे जो रोल है पैसिव का या सारे assets का, not just equity, हम equity की ही बात कर रहे हैं, लेकिन multi asset also, because passive makes possible multiple assets to be combined together, जहाँ पे rebalancing automatic होता है. और अब ये ट्रेंड चला है, और ये जो फंड ऑफ फंड्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा. अब अगले सालों में हम देखेंगे, अगले
महीनों में हम देखेंगे कि ये ट्रेंड बढ़ेगा. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ अबाउट कॉम्प्लिकेशन, सो आप आयरॉनिकली देखें तो जो सोफिस्टिकेटेड इन सी इट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेशन टू चूज सिंप्लिसिटी. ओके, जो आज की तारीख में लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इनटू द फैक्टर फंड्स, वो लोग ड्रॉ हो रहे हैं कि देखिए लास्ट 3 साल का रिटर्न देखिए, 5 साल का रिटर्न देखिए, इस फैक्टर फंड में 9% अल्फा है वगैरह वगैरह, 6% अल्फा है. In fact, the simple investors are getting, channeled into the sophisticated products. The sophisticated investors, on the other hand, are actually choosing consciously sometimes to choose the base products, the broad-based products, or they may choose the more sophisticated product. The point is they take that choice consciously. एंड जहाँ तक हमारा सवाल है तो सिंप्लिसिटी बाई इटसेल्फ कैनॉट बी एन एम. यू हैव टू प्रोवाइड चॉइस टू दोज हु नीड द चॉइस. एंड वहाँ पे एज एन एडवाइज़र हम लोगों का रोल आता है कि उस चीज़ को हम कैसे सिंपल बनाएं. और क्लाइंट का जो उद्देश्य है और क्लाइंट की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और क्लाइंट के जो रिसोर्सेज हैं उसको मैरी करें प्रोडक्ट के. और वो कैसे मैरी होता है उसको अगर हम प्रॉपरली इलस्ट्रेट करेंगे तो आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट मैरिज. सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, सिंप्लिसिटी कैनॉट बी एन एंड बाय इटसेल्फ. वी नीड टू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दोज हु वांट सिंप्लिसिटी, देयर आर द 3, 4, 5 products, whether it is in the Nifty space or in the BSE space. You can choose 50, 100, or mid cap 150, small cap 250, Nifty. I mean, I'm sorry to take the Nifty names. Sensex, right? So I mean, basically, those are available. Okay? तो वहाँ आपको वो सिंपल प्रोडक्ट चूज करना है तो आप वो चूज कर लीजिए. लेकिन आप ये मान के चलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है जो अपने आप से कर रहा है वो शायद अब वहाँ नहीं जाएगा, अब वो फैक्टर फंड्स में जाएगा क्योंकि ये हवा चली है कि फैक्टर फंड्स में रिटर्न्स हाई हो रहे हैं. यस, ग्रेट ग्रेट. कृष्ण, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं जी. कि आप नॉलेज इंडस्ट्री से हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर पैसिव ही फ्यूचर है इन्वेस्टमेंट का तो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर कॉल अटेंड कर, फिर क्यों वो फैक्ट शीट पढ़ रहा है, क्यों वो इतना रिसर्च कर रहा है फंड पे. तो अगर यही फ्यूचर है तो क्यों उनको ये सब करना चाहिए? व्हाट इज योर? बहुत ही अच्छा सवाल है निशांत, और मैं हिंदी में ही आंसर देता हूँ. सो देखिए, 2 चीज़ें हैं. ये समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट अबाउट आपका पोर्टफोलियो पूरा 100% पैसिव हो जाए, वो भी सही नहीं है. सो आपको वो परसेंटेज डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ द क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट, और उसके हिसाब से आप डिफाइन करें और उसके गोल्स को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज गोल बेस्ड एंड नीड बेस्ड. कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ लाइक हैविंग वाटर. अगर आप थर्स्टी हैं, आपको पानी चाहिए, तो वैसे आपको फाइनेंशियल प्लान चाहिए फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज देन ओनली विल बी इन द मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. सो MFDs का ये रोल होना चाहिए कि वो क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट्स को समझे स्टेप बाय स्टेप, कि नीड्स क्या है, गोल्स क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, और फ्यूचर में वो क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड उनके साथ रहे, वो उनको बीच में छोड़े नहीं. इट शुड नॉट बी अ ट्रांजेक्शनल गेम दैट ओके आई हैव सोल्ड समथिंग टुडे एंड देन आई फॉरगेट माई क्लाइंट टुमारो. यू हैव टू रिमेन विद द क्लाइंट. लेकिन आपको याद होगा जैसे फाइनेंशियल जो लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, दे हैव टू एक्चुअली बिहेव लाइक डॉक्टर्स. कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे कुछ तकलीफ होती है घर में तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि मुझे बताइए क्या करना है. उसी तरीके से वी हैव टू बिकम द फाइनेंशियल डॉक्टर्स ऑफ आवर क्लाइंट्स. और जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो वी हैव टू कीप ऑन इंश्योरिंग दैट कि उनका पोर्टफोलियो किस लेवल पे मैनेज हो रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए, एसेट डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है. ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी डन बाय द MFDs. सो उनके लिए वो कॉल्स लेना ज़रूरी है. दे कैन नॉट स्टॉप टेकिंग दोज कॉल्स, वो रहेंगी उनकी लाइफ में. और उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव का एक प्रॉपर एक मिक्स बनाए जो कि क्लाइंट के बेनिफिट में हो. और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट को ज़रूरी हैं उनकी लाइफ में, और उनको हर लेवल पे वो सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं तो कह रहा हूँ MFDs को भी फाइनेंशियल प्लानिंग को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो आगे जा करके अच्छे से अपने क्लाइंट को हर लेवल पे सपोर्ट कर पाए. Okay. Great thought, Krishan. So you need to keep educate yourself. Educate yourself and keep on learning. So कहते हैं कि learning should be there till the last breath of our lives. इंडस्ट्री बदल रही है ना, सिनेरियोज बदल रहे हैं, रेगुलेशंस बदल रहे हैं,
AI आ गई है, हर चीज़ आ रहा है, तो वी शुड कीप ऑन लर्निंग, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, हम अगर सीखेंगे नहीं then we'll be out of the market. So it is important that we keep on learning. Continuous professional development is the key to the success of any individual who is looking at a career in the future in this industry. ग्रेट ग्रेट. सो एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सबसे एक एक करके, क्योंकि टाइम कम है. तो आशुतोष, आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं आज और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप कहाँ करेंगे, पैसिव और एक्टिव, और कितना एलोकेशन देंगे? सबसे पहले तो मैं सर के पास जाऊंगा या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं उनके पास जाऊंगा. ये डिसीजन मैं खुद दूंगा नहीं. अच्छा. So honestly, while I'm in the industry, but I think it is very important that ये सब डिसीजन ना कोई हम इंडस्ट्री में होके भी इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम ठीक से रिसर्च कर सकें और डिसाइड कर सकें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. और ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, सर्कमस्टेंसेस आपके क्या है, आप पे ऑलरेडी क्या फाइनेंशियल बर्डन है, वो सब आप ही को पता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप समझो कि आपको ये पैसा कहाँ डालना है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये करो. बट अगर मेरा खुद का पूछोगे तो अभी मोस्टली आई एम इन्वेस्टेड इन इक्विटी. आई हैव अबाउट 20-25% इन बैंक एफडीज एंड सम डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स. बट वास्ट majority is equity. Needless to say, it's in my index-linked schemes. Great, great, great. Deepak, what is your message to distributors who are yet to integrate passives in their business? So, in simple terms, sir, when you look at the classical old school categories, I think हम लोगों ने काफ़ी सब gold, silver वगैरह के बारे में recently देखा है. As an industry, I think we are making our efforts. आप returns को देखेंगे that there are very cost competitive offerings out there in some of these classical categories जो आज के दिन सिर्फ passive में है. So first message कि there are tranches, जैसे हम TMF की बात करते हैं, gold silver की बात करते हैं, जहाँ बहुत cost competitive offerings जो हम लोगों ने जितना अपना मार्जिन कम कर सकते हैं वो कम करके जितना मार्जिन आपके पास छोड़ सकते हैं उतना छोड़ के मार्केट में रेज करी हैं. We as an AMC pride ourselves in some of these offerings. Then there are tranches where to a degree, like we have discussed, factor investing की हवा चली है. अभी हवा ऐसा नहीं है एक हफ्ते से चली है, एक महीने से चली है, 5, 10, 3, 15, 20 साल के रिटर्न्स के हिसाब से चली है. And globally also, these funds generated alpha in the US for more than 30 years plus. And slowly that alpha has decayed. But that alpha generation journey in India has just started. So to a degree, अभी हम लोगों का वो जर्नी शुरू हुआ है. सो वेदर यू आर लुकिंग एट लाइक वेरी बेसिक और यू आर लुकिंग एट एडिंग वैल्यू, देर इज नो एस्केपिंग पैसिव्स एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन द ग्रोथ जर्नी फॉर योर सेल्फ. इफ समथिंग इज कंपाउंडिंग एट अ रेट ऑफ 30-35%, if you are making half the fees on it versus something that is compounding at 15%, the end result is going to be the same for you. So to a degree, whether it is additional money, whether it is the rate of compounding of passives, whether it is the uptake of passives, I think वो सब के बीच में अगर आप मैथ जोड़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो लोग passives आज के दिन बेच रहे हैं, जो उसके बारे में एडवोकेट कर रहे हैं, वो बेटर ग्रोथ देख रहे हैं अपने बिजनेस में. So it is something to a degree to accept, to grow on and to kind of consult with us and see what we can do with you to find solutions that work for you. Great, great thought. हर्ष, AMCs भी है इंक्लूडिंग दीपक, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे AMCs पैसिव्स को और अट्रैक्टिव और अपीलिंग बना सकते हैं इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए? सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसिव्स, ये जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ने जो मैसिव काम किया है आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को घर घर पहुंचाने का, और म्यूचुअल फंड सही है का मैसेज भले ही डिलीवर मीडिया के थ्रू हुआ हो, लेकिन उसको एक्चुअली एक्टिवेट करने का काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया है. RIAs हम बहुत ही छोटा प्रोफेशन है आज की तारीख में, तो जो काम किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया है. तो उनके लिए एक तो पैसिव उनको समझ में आना चाहिए, ओके, एंड उसमें एजुकेशन की ज़रूरत है. और दो चीज़ों के एजुकेशन की ज़रूरत है. एक तो पैसिव है क्यों और क्यों करना चाहिए, और उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज कई उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे हैं जिनके आपस में उनका क्योंकि एक्टिव है तो उनको अपने अस्तित्व का कि मतलब अगर एक्टिव फंड मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे
सिर्फ पैसिव करेंगे तो क्या हम फंड मैनेजर हैं? ओके, सो आई थिंक दैट इज अ इशू दैट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नीड्स टू रिजॉल्व. दे नीड टू मेक दैट क्लियर फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. It needs to be more remunerative for the distributors. So here I am advocating better commissions for the distributors. Okay, but more importantly, also sort of educate. ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. ठीक है, आपको 0.5% मिलता है और इक्विटी में अगर वहाँ पे आपको 1% मिलता है, लेकिन 1% of 1 year and 0.5% over 10 years, आप अपना खुद हिसाब लगा लीजिए कि कौन सा बेटर होगा और आपकी जो रिलेशनशिप है उस क्लाइंट के साथ कौन सी बेटर होगी. और ऑफ कोर्स सबसे अच्छा ये है कि आप कमीशन करें ही ना, आप फीस ही ले लें, तो आपको बिल्कुल वो एकदम बढ़िया हो जाएगा. आप हमारे प्रोफेशन में आ जाइए. Great thought. Question coming to you. अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होते जी. तो आप कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करते? पैसिव ओनली, एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव ओनली? That's an interesting question. I think it should be a good combination of both. लेकिन मैं उसके beyond जाना चाहता हूँ कि देखिए financial planning is not only about investments, है ना? It is about managing life of people. So when जिस business में आप ऐसे business में जहाँ पे आप लोगों की life manage कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको investment के beyond भी सोचना पड़ेगा. There are so many other things which are important. कि उसके रिटायरमेंट के लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके फ्यूचर में उनकी एस्टेट के बारे में कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनके रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं. आप उनके इन्वेस्टमेंट प्लान को तो बेहतर करते ही हैं अपने एफर्ट से. तो ये अगर आप पूरी तरह से एक होलसम नॉलेज लेके क्लाइंट को हेल्प करेंगे, है ना, एंड फॉर दैट आपको एक प्रॉपर एजुकेशन की भी ज़रूरत है, तो वो आप लीजिए. एक प्रॉपर एजुकेशन लें, कंसल्टेंट बने. डोंट बिकम जस्ट अ एजेंट, राइट? एजेंट मत बनिए, डोंट बी ट्रांजेक्शनल. कंसल्टेंट बनिए. यू रिमेन विद द क्लाइंट थ्रू आउट देयर लाइफ्स, एंड आप देखिए आप फ्लरिश करेंगे हर लेवल पे. आपको हर प्रोडक्ट से जो भी आप उनके पास लेके जाएंगे, वो एक रिलेशनशिप, वो कंसल्टेंसी आपको फ्यूचर में ज़्यादा सपोर्ट करेगी. वहाँ पे 0.5 या 0.05 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज जो है इनसे इनके बियॉन्ड है. और बस ये समझिए कि अगर आपने क्लाइंट्स को हेल्प की उनकी लाइफ मैनेज करने में, आप समझिए आप भारत देश के विकास में कितनी मदद करेंगे. सो विकसित भारत 2047 के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और हमारे MFDs का बहुत बड़ा रोल हो सकता है. आपको फोकस करना है एडुकेटिंग द क्लाइंट्स. आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करिए, खुद ब खुद प्रोडक्ट बिक जाएगा. जी. Great thought. All right, we have come to an end to this interesting session. Huge round of applause, friends.